چٹگانگ، راجشاہی، کھلنا اور چوتھا لاہور اور سلٹ، یہ سارے ہندو میجورٹی ایریاز تھے، سارے ان کے پاکستان کے ساتھ ہی گئے۔ یہاں پہ آپ لوگ سب لوگ یہ سمجھو، اور یہ سب وہاں پہ ان کا جانا ہے، اس کو کرافٹ کیا گیا شاید کانگریس لیڈرشپ کے بیچ میں سے۔ مسلم لیگ کیا کرنا چاہتا تھا وہ تو ہم کو معلوم ہے، وہ کلیئر تھا، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں تھی۔ کانگریس اندر سے کیا کر رہا تھا، کانگریس کی لیڈرشپ اندر سے کیا سوچ رہی تھی، کسی نہ کسی بہانے، کسی نہ کسی ترک کے سہارے 5 ہندو میجورٹی ایریاز اس سائڈ گئے، اور اس وقت جموں ایک ہندو میجورٹی ایریا جموں کشمیر کا ہے۔ ایک بات میں آپ سے بالکل ونمر نویدن کروں گا، جموں کو اندر سے دھوست کرنے کی پرکریا چل رہی ہے، اور اس پہ ہم کو کوئی پارٹی اچھا کرتی ہے اس کا سہارا لے کے بھی چل سکتے ہیں۔ کانگریس ٹھیک کرتی ہے، بھاجپا ٹھیک کرتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک شک ہم کو رکھنا چاہیے، ایک کوسچن مارک رکھنا چاہیے کہ یہ بٹرے کرتے آ رہے ہیں، اب بھی بٹرے کر سکتے ہیں، اور جموں کو بچانے کی جو بات ہے وہ ہم سب لوگوں کو مل کے، ہندو، مسلمان، سکھ، سب لوگوں کو مل کے کرنی ہے۔ اور اس وقت ہمارے پاس یہ سمجھ ہونی چاہیے پچھلے 65 سال کے ایکسپیرینس کے بعد کہ انڈین اسٹیٹ اپنے ناردرن فرنٹیئرز کو، اپنی لیوریجز کو، چاہے ڈیموگرافک لیوریجز ہوں، سیکولر لیوریجز ہوں، چاہے ہسٹوریکل لیوریجز ہوں، لیگل لیوریجز ہوں، خود ختم کرتا آ رہا ہے، خود انڈرمائن کرتا آ رہا ہے۔ پاکستان اس میں کچھ نہیں کر رہا ہے۔ آج جموں کا سینسس 5% سے سڈنلی کم ہو گیا، اور میری جانکاری ہے کہ سینسس آفیسرز نے ٹاپ لیول پہ دہلی میں ان کو کہا تھا کہ گڑبڑ ہو رہا ہے، وہاں پہ ٹیبل رائٹنگ ہو رہی ہے، اور ان کو یہ کہا گیا تھا یہ سینسٹیو میٹر ہے، چپ کر کے بیٹھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر یہاں کے چولہے برابر ہیں، گیس کنیکشن یہاں پہ زیادہ ہیں، الیکٹرک کنیکشن زیادہ ہے، اور پاپولیشن وہاں پہ زیادہ ہوگی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اندر سے پرکریا، اندر سے ختم کرنے کی پروسیس ہے، اس کے بارے میں ہم سب لوگوں کو سچیت ہونا ہے۔ اور آج کے دن کا مہتو میں اس سندرب میں دیکھتا ہوں، صرف یہ ایک سلوگن نہیں ہے پاکستانی انویژن ناٹ اے ٹرائبل، یہ اس سوچ کو یا اس سموک کو، اس قبضے کو جو ہمارے دماغ پہ ہے کہ ہم صحیح بات نہیں دیکھ رہے ہیں جو ہمارے سامنے ہے، اس کے بارے میں ہم کو سچیت کرنا کہ بھیا کچھ اور ہے وہ دیکھ لو، آپ قابل ہو، آپ بہادر بھی ہو، آپ طاقتور بھی ہو اس کا پرتکار کرنے کے لیے، لیکن پہلے دیکھ تو لو۔ دھنیہ واد۔ جو ہسٹورینز ہیں، اسکالرس ہیں، پولیٹیکل پارٹی سے بھی کچھ سمبند رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے وچار رکھے۔ پروفیسر صاحب نے بہت ڈیٹیل میں ایکسیپشن کے بارے میں کہا، میں اس کو ٹچ نہیں کروں گا۔ میں آپ سب کا دھیان ان سچائیوں کی اور لاؤں گا جو شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہے یا کسی کو معلوم بھی نہیں ہے۔ تھوڑا سا ہسٹری کی اور چلتے ہوئے، جہاں تک 15 اگست کا آزادی کے 47 کا تعلق ہے، امیڈیٹلی آفٹر 15 اگست مہاراجہ صاحب کا منشا کیا تھی، یہ صرف ایک چیز سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پاکستان میں جانا چاہتے تھے یا ہندوستان میں جانا چاہتے تھے۔ وہ جلدی میں کیوں اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکے، وہ پروفیسر صاحب نے بہت ڈیٹیل میں بتایا، مجھے ضرورت نہیں ہے بتانے کی، لیکن میں ایک چیز آپ کی سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ چیز ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کرنا چاہیے، اور انہوں نے پاکستان اور ہندوستان دونوں کو اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کے لیے آفر دی۔ پاکستان نے اسے ایگریمنٹ کو ایکسیپٹ کیا اور سائن کیا۔ ہندوستان کسی کارن سے، ہم نے اس ڈیٹیل میں جانا چاہتے، اس نے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن
पाकिस्तान ने यह समझ लिया कि जब एग्रीमेंट साइन हुआ है तो उन्होंने अपने सांस लिया कि इनका रुझान हमारी तरफ है और हमें इसका पालन करना चाहिए। इमीडिएटली उन्होंने पाकिस्तान ने क्या किया कि जितना पोस्ट ऑफिस थे हमारे हिंदुस्तान में, वहां पर पाकिस्तान के झंडे लगा दिए गए। अब अंदाजा लगाइए, जब महाराजा साहब को यह पता चला कि पाकिस्तान के झंडे मेरी रियासत में लगाए गए हैं, तो उन्होंने सिर्फ केवल प्रोटेस्ट नहीं किया बल्कि फोर्सेबली उन झंडों को पोस्ट ऑफिस से रिमूव किया। क्या यह काफी नहीं है? महाराजा साहब का रुझान किस तरफ है इसको दर्शाते हुए, और इसके साथ ही हिंदुस्तान को रिक्वेस्ट की कि आप कृपा करके जो पोस्ट ऑफिस हैं जिन पर ये पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती किया है, क्योंकि पाकिस्तान उस वक़्त जो पोस्ट ऑफिस थे वो सियालकोट जो डिवीजन था पोस्ट ऑफिस का वहाँ के थे। इसके बावजूद उन्होंने हिंदुस्तान को रिक्वेस्ट की कि जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं उनका कृपा करके चार्ज ले लीजिए। ये बिल्कुल साफ जाहिर करता है कि महाराजा हरि सिंह साहब का इस जो एक्सेशन है उसके बारे में क्या विचार था। 15 अगस्त स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट चला गया। 3 4 सितंबर से पाकिस्तान ने यह समझा जब कि ये मेरी दाल गलने वाली नहीं है, जब उसने देखा कि ये जो मैं समझता था कि ये इसका रुझान मेरी तरफ है, तो उसने फिर नई चाल एक बनाई। बहुत हाई लेवल पे इसको एक जो उनका एक्शन प्लान है उसको बनाया गया, जिसमें 3 मुद्दे खास तौर पर थे। सबसे पहला इकोनॉमिक ब्लॉकेड। जम्मू और कश्मीर रियासत में पूरी डिपेंडेंसी जो थी वो पाकिस्तान के साथ जो इलाके मिलते थे, उधर से रावलपिंडी, इधर से सियालकोट, यहाँ का सारा हिस्सा था। तो पाकिस्तान ने पूरा कंप्लीट ब्लॉकेड कर दिया। जितनी भी कमोडिटीज थी वो सारी की सप्लाई बंद कर दी। अपने लोग कुछ वर्दी में कुछ नावर्दी में पूरे जम्मू और कश्मीर में फैला दिए गए ताकि लोगों में वो सही मायनों में जहर उगलें, खासकर उन भाइयों को जो उनके साथ थे, ताकि वो तैयार हो जाएं, हमने जम्मू कश्मीर पर हमला करके पाकिस्तान के साथ शामिल करना है। नंबर 3 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट की जाए, और तब तक की जाए जब डेट उन्होंने निश्चित करी, वही 21-22 अक्टूबर जो आज का दिन है, वो तभी निश्चित हो गई थी। 3 सितंबर से लेकर उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन शुरू कर दी जो 21 अक्टूबर तक चलती रही। और सबसे हिस्टोरियन मेरे पास बैठे हैं, कोई चीज़ गलत नहीं है, जो भी चीज़ मैं कहूँगा इट इज़ फैक्ट और हिस्टोरिकली उसका प्रूफ मेरे पास है, कोई गलत चीज़ नहीं है। हर रोज 3 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर तक कोई भी दिन खाली नहीं होता था जब पूरे बॉर्डर में इन्फिल्ट्रेशन करते करते वो नहीं आ रहे थे। इसी दौरान जो इंफॉर्मेशन जिस इन्फिल्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में आती थी, ये डेली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसकी इतला दे देते थे कि आज हमारी रियासत में कहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, पाकिस्तान का नजरिया क्या है, ये सब चीजें हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हिंदुस्तान ने इसके ऊपर कोई भी दिलचस्पी नहीं ली, कोई भी उस पे ऊपर ये नहीं सोचा कि क्या होने वाला है, वो सोच नहीं सके। अब जो 22 अक्टूबर की बात आती है, 22 अक्टूबर का जो प्लान बना, जहां पर यह प्लान बनाया गया जिन्ना साहब ने, क्योंकि वो ईद यहां पर मनाना चाहते थे। उनका विचार था कि श्रीनगर में जाके जो ईद है वो 26 तारीख को थी मेरे ख्याल में, उन दिनों उस साल 26 तारीख को ईद थी, वो 26 तारीख को ईद यहां मनाना चाहते थे। 25 को हो सकता है, 25 या 26 में ये कह रहा हूं। तो अंदाजा उन्होंने लगाया कि 22 को अगर हम पूरा वहां पर मुजफ्फराबाद से बिल्कुल एंटर करेंगे तो 25 तारीख हमारी बिल्कुल सेफ है। आई विल बी एट
माई फोर्सेस माई पीपल विल बी अवेलेबल एट श्रीनगर, ईद मनाने के लिए तैयार होंगे। इस तरह से इस चीज़ की मतलब कि पूरी प्लान के हिसाब से हमला किया गया और मुजफ्फराबाद सोए हुए लोगों के ऊपर 22 अक्टूबर की रात को कत्लेआम किया गया। हजारों लोग कत्ल किए गए, बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द बेरहमी से कत्ल किए गए। औरतों को उठा के उनके साथ जो बेरहमती की वो बताई नहीं जा सकती, उनके उस चीज़ के लिए लफ्ज़ नहीं है कि उनको किसी तरीके से बताया जा सके। एडवांस शुरू हो गया। मुख्तसर मैं ये कहूँगा कि आस्ता आस्ता करते वो महोड़ा पहुँचे। महोड़ा पर आकर उन्होंने वो जो हमारा पावर हाउस है वो पर कट कर दिया गया। महाराजा हरि सिंह साहब उस वक्त भी, उस साल में भी यही दशहरे के दिन थे जो इस साल हैं, वही दशहरे के दिन थे। और उस साल भी 25 या 26 को दशहरे का मनाने वाला था और वो दशहरा दरबार में बैठे हुए थे जब उनको ये इतला मिली कि वहाँ से तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की फौजें जिनको उन्होंने रेडर्स का नाम दिया, वो दाखिल होकर आ गई हैं। 24 तारीख को ही उन्होंने एक डिटेल्ड लेटर, फुल डिटेल, जिसमें पूरी हिस्ट्री दी हुई थी कि कब से क्या हुआ, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखी। वो पहुंच गई वहां पर 25 तारीख को। जब 25 तारीख को जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं इन हालात की वजह से मैं आपके साथ एक्सेप्शन के बारे में मैं बोलूंगा नहीं, कि वो सारी डिटेल हो गई है कि मैं आपके साथ एक्सेप्शन करना चाहता हूं और ये चीज़ें हैं। वो जो लेटर है वो बिल्कुल कंप्लीट लेटर है, फुल डिटेल में है। मेरे पास जो लोग बैठे हैं, भाई बैठे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आज का अर्ली टाइम वो ज़रूर पढ़ें। वो कंप्लीट लेटर उसमें है जिसमें सारी डिटेल आपको पता चलेगी। मैंने अपने टूटे फूटे लफ्ज़ों के साथ उसमें साथ और कुछ ऐड किया है, लेकिन जो मेन मुद्दा था वो महाराजा साहब ने क्या लेटर लिखा है, क्या क्या हालात थे, वो लिखा हुआ है। हैरानगी की बात देखिए, जब वो लेटर पहुंचती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास, उससे पहले पाकिस्तान की लेटर वहां पर पहुंच गई। उन्होंने ये कहा कि यही कहा कि ये पठान लोग, ये लोग, वो लोग आपकी रियासत में दाखिल हो गए जिनके साथ हमारा कोई तल्लुक नहीं है। अंदाजा लगाइए, चोर और अपनी चोरी को छुपाने के लिए वो क्या क्या करने की तजवीज़ बना रहा है। पहले ही उसने हमारी जो महाराजा साहब ने लेटर भेजी थी उससे पहले ही उन्होंने लेटर वहां पर पहुंच गई। एक्सेशन के विषय में वहां पर यह फैसला हुआ कि भाई एक महाराजा साहब ने एक्सेशन तो मांगा है। असल उनकी जो माउंटबेटन साहब और नेहरू साहब बीच में तो चाहते थे कि हमारी जो है रियासतों के उनके साथ उनका तल्लुक तो था ही, पूर्वज उनके यहाँ के रहने वाले थे। लेकिन माउंटबेटन के साथ, उनके परिवार के साथ उनके क्या तल्लुक थे, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि माउंटबेटन किसी हालत में नहीं चाहते थे कि ये हिंदुस्तान के साथ हो, वो तो चाहते थे 100% कि इसको पाकिस्तान के साथ किसी ना किसी तरीके से हमको मिलाना है। तो उसने बीच में थोड़ा सा डंगा डाल दिया कि पहले हमको वहाँ के हालात देखने चाहिए कि क्या हालात है, उसके बाद हम इसका एक्सेप्शन एक्सेप्ट करेंगे। तो मिस्टर मैनन को डिप्यूट किया गया फॉर दिस वेरी पर्पज़ कि वहाँ पर जाके आप हालात देखिए कि कैसे हालात हैं, तो उसके बाद हम करते। तो जब आए यहाँ पर तो उन्होंने देखा क्या हालात हैं, वो तो घबरा गए। पहली चीज़ जो उन्होंने की, महाराजा साहब से रिक्वेस्ट करी कि आप काइंडली जम्मू से श्रीनगर से आप जम्मू शिफ्ट हो जाइए ओवरनाइट, ताकि अगर किसी वजह से पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आर्मी आपको कब्जे में कर लेती है और आपसे ज़बरदस्ती कराएगी तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो वो वहाँ से चल पड़े। 25 तारीख को रातों रात वो यहाँ पर आए और वो वहाँ से सीधे चले गए दिल्ली। दिल्ली जाकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है दे दी कि वहाँ के जो हालात हैं ऐसे हैं। अब उनको मजबूरी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर अड़ंगे से अड़ंगा शुरू हो गया। जस्टिस
महाजन जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ के, जब उनके साथ अड़गे की बातें हुई तो खड़े हो गए और नेहरू को इस तरीके से कहा कि अगर आप मेरे लोग, मेरे भाई, मेरी रियासत के लोग जो मारे जा रहे हैं, अगर आपको इनकी परवाह नहीं है तो आई एम गोइंग टू, जनाब मैं ये कबूल कर लूँगा कि पाकिस्तान में जाना है, लेकिन मैं अपने रियासत के लोगों को मरने के लिए नहीं कहूँगा। आई एम गोइंग टू पाकिस्तान, जनाब को मिलने के लिए। फिर उस वक्त पटेल साहब ने उनको बिठाया वहाँ पर कि नहीं आप बैठिए, इसका हो जाएगा। इस मजबूरी में उन्होंने वो एक्सेप्ट किया। यानी कहने का ये मतलब है कि हर स्टेज पे, हर हालात में अड़ंगे पे अड़ंगा लगता रहा, और जिसकी वजह से ये आज के हालात जो हैं हम भुगत रहे हैं। मेनन साहब आके तो उस वक्त जब जम्मू, क्योंकि जम्मू महाराजा साहब को उन्होंने कहा था जम्मू आने के लिए, वो सीधे जम्मू पहुंचे 26 तारीख को। जब 26 तारीख को जम्मू पहुंचे तो महाराजा साहब थकावट की वजह से सोए हुए थे, और जो उनका एडीसी था, आप देखिए उनको क्या इंस्ट्रक्शन दी उन्होंने, उनके लफ्ज़ सुनिए। उन्होंने कहा देखो मुझे तुमने जगाना नहीं, अगर तुम्हें मेरी जो मैंने एक्सेप्ट में अपने ऑफर की है, एक्सेप्शन की एक्सेप्टेंस की, अगर वो आ जाती है तो फिर तो ठीक है, मैं समझूंगा कि हिंदुस्तान हमारी मदद के लिए आ रहा है। लेकिन अगर वो ऐसी नहीं आती तो यू कैन किल मी इन माई स्लीप, मुझे सोते सोते मार दीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी रियासत का ये हाल नहीं देखना चाहता जो हुआ है और जो आगे हो रहा है। ये थे हालात, जिस हालात में हुआ इमीडिएटली वो चले गए वापस। और 27 को मॉर्निंग में जिसको हमें रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, और पहली जो फोर्सेज हैं यहाँ पर आई, और इस तरफ हालात ये थे कि वहाँ की फौजें, जैसे मैंने कहा, मुहारत हो रही थी, सब बढ़ रही थी। हिस्ट्री तो बहुत लंबी है, अगर हम इसको डिटेल में पाएंगे तो कई दिन लग जाएंगे छोटी छोटी बातों को कलेक्ट करने के लिए। क्योंकि जैसा मैंने अर्ज किया, मैं तो ना ही स्कॉलर हूँ, ना ही तो मैं कोई मतलब रिसर्च करने वाला हूँ, मैं तो एक सिर्फ समझ लिया कि इस जो 40 चीज़ हुई है उसको आंखों देखा हुआ है, एंड जिसको हम ये कह सकते हैं आई एम वन ऑफ द विक्टिम्स। मेरे 2 साथी बैठे हैं वहाँ पर, मुझे नहीं लगता कि उसके बगैर कोई यहाँ पर उस इलाके का हो। मैंने चूँकि मैं 15 साल का था जब मैं वहाँ से आया, सारी चीज़ें मैंने अपने आप से देखी हैं। रजौरी का फाल कैसे हुआ, मीरपुर का फाल कैसे हुआ। मैं कोटली का रहने वाला हूँ, चरंगू साहब ने अभी चले गए हैं, उन्होंने सहनसा का नाम लिया था, ओवन पत्तन का नाम लिया था। ओवन पत्तन बॉर्डर का मेरी तहसील के आगे है, सहनसा मेरी तहसील का है, जहाँ मैं उसको सहनसा को देखा हुआ है, जहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन वगैरह शुरू हो गई थी। तो कितनी आप जो हिस्ट्री है उसको करेंगे। बाकी जैसे सवाल जो चूँकि आज का है, पाकिस्तान इन्वेजन नॉट ए ट्राइबल रेड, इसमें कोई शक नहीं। कुछ चीज़ें रिटन जो मुझे मिली हैं, सबसे बड़ी चीज़ है, मैं आपको 2 लफ्ज़ पढ़ के सुनाऊंगा तो क्या प्रूव करती है कि पाकिस्तान की उसमें थी या नहीं थी। मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे कि पढ़ के सुना रहा हूँ, क्योंकि वो लफ्ज़ सारे मुझे ठीक तरीके से बयान करने में कुछ दिक्कत होगी। हमारे एक मेजर कल्किट थे बिफोर पार्टीशन 47 की जो है, जहाँ पर वो पोस्टिंग थी उनकी, उनके हाथ में एक सीक्रेट लेटर, उस सीक्रेट लेटर में जिसमें पूरी डिटेल दी हुई थी इस इन्वेजन के बारे में। उनकी यूनिट के हेड तो हैं, क्योंकि सारे थ्रू आउट, एंड दोज लेटर्स आर साइंड बाय द आर्मी कमांडर ऑफ दैट पाकिस्तान। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या ये काफ़ी नहीं है इस चीज़ को मानने के लिए कि इट वाज नॉट अ रेड, इट वाज ए फुल फ्लेज्ड इन्वेजन
ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बाई पाकिस्तान। पढ़ के सुनाऊंगा तो टाइम लगेगा, मेरे भाई अगर कुछ चाहेंगे तो मैं उनकी पूरी डिटेल आके मेरे पास मैं दे सकूँगा, मीडिया वाले जो कोई भी चाहे उनको दे दूँगा डिटेल्स। उससे पूरी डिटेल उन्होंने नवीन की दी, और 22 तारीख को उन्होंने कहा कि 22 तारीख को हमने वहाँ पर मुजफ्फराबाद में अटैक करके हमने वहाँ से एंटर करना है। देखा तो घबरा गए, उन्होंने कहा कि ये तो मेरे मुल्क में ऐसी चीज़ हो रही है। तो जो उनके ऑफिसर कमांडिंग थे तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल चीज़ जो है बिल्कुल ऐसा रखो, अगर थोड़ी सी भी लीक होगी कि तुम्हें ये चीज़ का पता लग गया है एंड यू विल बी किल्ड इमीडिएटली। और वही बात हुई कि ये चीज़ लीक हो गई कि जो उनके पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर उनको ये मैंने पता लगी, इनको पता लगी, तो ही रैन अवे फ्रॉम दैट प्लेस। अपने आप को किसी तरीके से बचाते हुए वो इंडिया पहुंचे, एंड ही gave full details of that letter to our army officers, including the defense minister of that time, Mr. Singh। सारी चीज़, लेकिन उसकी चीज़ को किसी ने नहीं माना, ये हालात हुए। इसके अतिरिक्त एक मिस्टर रेड्डी थे, जर्नलिस्ट, आप जो मेरे पास जर्नलिस्ट भाई बैठे हैं वो आप में से थे एक उस वक्त। उन्होंने एक कॉल जो है वो किसी ने उनको एक कॉल दी किसी वहाँ के पाकिस्तानी मुस्लिम के लिए, बाई चांस कॉल उन्होंने कहा कि ये वो मेरे भाई सुन रहे हैं, लेकिन इन्होंने काली साहब उसमें सारी डिटेल ये दी हुई थी, और जिसमें ये और स्पेसिफिकल ये कहा हुआ था कि आपने